Morning everyone. Today we are going to discuss in-text questions of chapter first. See, maximum questions having chemical reactions in it. So first of all we'll discuss all the chemical reaction of this chapter. Okay, so maximum question going to be covered. First chemical reaction is combination reaction. Let us read. A reaction in which two or more substances combine to form a single product is called combination reaction. See, maximum all the combination reaction are exothermic reaction. Exo that means exit and thermic that means heat. तो ये सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट रिलीज होती है तो उसको एक्सोथर्मिक भी बोला जाता है. सो लेट अस डिफाइन a chemical reaction in which heat is released during formation of product is called exothermic reaction. Here it is. A chemical reaction in which heat is released during formation of product is called exothermic reaction. See, these are the example. Let us discuss one by one. First is calcium oxide. When react with carbon dioxide they form calcium carbonate. This is combination reaction because here two substances combine to form a single product. So simple, according definition, when two or more than substances combine to form a single product then it is called combination reaction and it is exothermic also. Let us discuss chemical reaction. Calcium oxide. See, calcium oxide. So calcium valency 2 plus, oxygen 2 minus. Whenever it react with carbon dioxide, listen how to write product. Calcium, how many carbon? 1 and how many oxygen? 2 and 1 3. ये कैल्शियम ऑक्साइड और कुछ नहीं चूना है. ठीक है. अब चूने के अंदर जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऐड करते हैं तो कंबाइन होके वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है. यानी ये चूने की पपड़ी अपने वाइट वॉश करते वॉल पे मतलब पपड़ी निकलती है वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और ये जब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है तो हीट रिलीज होती है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. देखना कभी चूना देखना, चूना बाजार से लाके पानी में डाल के देखना उसके अंदर से वेपर निकलेगी. वैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करने पर भी वो सॉल्यूशन वार्म हो जाता है यानी हीट रिलीज होती है. सो दैट्स व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑल्सो. अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, ठीक है, while the formation of product is called exothermic reaction. Now next is burning of coal. We know coal that means carbon and to burn any substance it required oxygen. So whenever carbon burn in the presence of oxygen it form carbon dioxide. Even कोई भी चीज़ जलाते हैं तो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है क्योंकि हर एक सब्सटेंस में कार्बन होता है. So now let us understand why it is combination. Because two substances combine to form a single product. That's why it is combination. Let us understand how it is exothermic. Exothermic का मतलब हीट रिलीज होनी चाहिए. अब कार्बन डाइऑक्साइड खुद एक हॉट गैस है. देखना कोई भी चीज़ आप जलाओ फिर धुआं निकलता है तो धुआं गर्म ही होता है. ऑब्वियसली वो ठंडा नहीं होता है. तो धुएं को गर्म किसने बनाया? ये सब्सटेंस जब हम रिएक्ट किया ये दोनों सब्सटेंस तो उसमें से हीट निकली जिसकी वजह से धुआं क्या हो गया? गर्म. तो यहाँ पर भी हीट रिलीज हुई. दैट्स व्हाई इट इज exothermic reaction. So according definition, a chemical reaction in which heat is released during the formation of product is called exothermic reaction. Product मतलब carbon dioxide. Now reaction of hydrogen and water. When hydrogen react with oxygen it form water. Let us balance. How many hydrogen? 2. Here also 2. How many oxygen? 2. Here 1. So to balance this water I will write 2 before H2O. So oxygen become 2 but hydrogen becomes 4.
So to balance this hydrogen, I will write 2 before hydrogen. Now hydrogen will be 4 in the reactant side, in the product side also 4. In the reactant side oxygen 2, in the product side oxygen 2. So it is combination, obviously. Two substances combined to form a single product. So it is called combination. It is exothermic also. During this reaction heat is released. You might be thinking, okay, here the water is formed, so how water can be hot? Let us understand through video. See here, it is a reaction of hydrogen with oxygen. Let us understand. अब इसके अंदर हाइड्रोजन है, वो इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसके अंदर जिंक डाला हुआ है, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा और यहाँ डिपॉजिट होगा। देखो धीरे धीरे ऊपर की जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा गैस डिपॉजिट होता जाएगा, क्लियर हमें दिखेगा। जस्ट ए मिनट, यहाँ रिएक्शन इसने कर दिया। देखो ये जो है, ये जो दिख रहा है आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक गैस है। ये कौन सा? हाइड्रोजन गैस है। नीचे की टेस्ट ट्यूब में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था जिसके अंदर जिंक, यानी कोई भी एसिड में मेटल डालो तो उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकलता है। हमने क्या किया, इसके ऊपर और एक टेस्ट ट्यूब रख दी, यानी ये वाली, तो हाइड्रोजन गैस इस टेस्ट ट्यूब में डिपॉजिट हो गया। अब हम इस हाइड्रोजन से ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएंगे। सिंपल लॉजिक है, कोई भी चीज़ जलाओ तो तुरंत ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। तो हम क्या करेंगे, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर बर्न मैस्टिक इंसर्ट करेंगे। ऑलरेडी हाइड्रोजन है, अब मैस्टिक है, उसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हाइड्रोजन ऑलरेडी अंदर है और ऑक्सीजन भी आएगा, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन हो जाएगा। तो देखते हैं, और देखना हाइड्रोजन जब भी बंद होता है तो पॉपिंग साउंड आता है। कौन सा साउंड आता है? पॉपिंग। आप साउंड सुनना। You can see that a chemical reaction is occurring here. Firstly, bubbles are being formed with stems, then air. It can be collected in an inverted boiling tube. Now you can see that a chemical reaction is occurring here. The bubbles are being formed, which indicates the अब आपको ध्यान से सुनना है। Also, heat is being released. देखो आवाज सुनना है अभी आपको। So that was a loud pop that you being released. So that was, ये जो हुआ, ठीक है, ये रिएक्शन, ये पॉपिंग साउंड बताता है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ। क्योंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तभी ये पॉपिंग साउंड आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन पॉपिंग के साउंड के साथ जलता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ और ये पॉपिंग साउंड हुआ। अब ये जो टेस्ट ट्यूब है, हमें वाटर के ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। ये क्या इंडिकेट करता है? टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी हाइड्रोजन था, हमने बर्न मैस्टिक डाल के वहाँ पर ऑक्सीजन भी दिया, तो बना वाटर जो टेस्ट ट्यूब के अंदर दिखता है। और इवन पॉपिंग साउंड जब भी आता है तब यहाँ से स्मोक निकलता हुआ दिखाई देगा, जो ये बताता है कि यहाँ से हीट रिलीज़ हो रही है, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। कॉम्बिनेशन तो है ही, टू सब्सटेंस कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट्स, ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन। एंड whenever heat is released during the formation of product, then it is called exothermic. So it is also exothermic reaction. Now let us discuss next reactions. Here it is. When methane react with oxygen, it form carbon dioxide and water. मीथेन जनरली नेचुरल गैस में होता है, ठीक है, जो CNG हम यूज़ करते कार में उसके अंदर होता है। तो वो जब बर्न होता है, कोई भी चीज़ कंबस होने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की।
whenever it combust in the presence of oxygen it form कार्बन डाइऑक्साइड जो स्मोक के थ्रू साइलेंसर से बाहर निकलता है, और वाटर ड्रॉपलेट्स भी निकलती है, लेकिन वो हमें दिखते नहीं है क्योंकि वहाँ पर इतनी हीट होती है, उसकी वजह से वो स्मोक के साथ इवापोरेट हो जाते हैं। ठीक है, लेट अस बैलेंस 1 कार्बन, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2, so to make 4 I will write 2, oxygen 2, and here oxygen 2 and 2 4. So to balance this oxygen in the reactant side I will write 2. So this can be एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि हीट रिलीज हुई कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं बोल सकते क्योंकि बिकॉज टू सब्सटेंसेस आर कंबाइनिंग but they are not forming single product, they are forming two products, so it's not a combination, it is exothermic reaction. Now next exothermic reaction is respiration reaction. अब मैं समझाता हूँ इसमें क्या होता है। हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला 6-12 छक्के, कैसे याद रखेंगे? 6-12 छक्के, CHO लिख डालो। ये ग्लूकोज बन गया। फिर हम जब भी रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, तो कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिक्स होके हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और बाहर क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आप सोचोगे वाटर कैसे? देखना, आपके नाक के पास आपके हाथ 4-5 मिनट तक रखो तो आपका जो हैंड है वो थोड़ा वेट हो जाएगा। वो इसीलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर भी बाहर निकलता है। तो आप सोचोगे अब ग्लूकोज का क्या हुआ? ये कन्वर्ट हुआ एनर्जी में, जिस एनर्जी से हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो सिंपल है, याद रखना। खाना खाते हैं तो क्या होता है हमारे बॉडी में? ग्लूकोज। 6-12 छक्के, सांस लेते अंदर कौन सा गैस जाता है? ऑक्सीजन। बाहर क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और बॉडी के अंदर फॉर्म होती है एनर्जी। अब बैलेंस करें 6 कार्बन, हियर 1, टू मेक दिस 1 कार्बन 6 विल राइट 6 बिफोर CO2, हाइड्रोजन 12, हियर हाइड्रोजन 2, सो टू मेक दिस 2 हाइड्रोजन 12 विल राइट 6 बिफोर H2O। अब ऑक्सीजन काउंट करो रिएक्टेंट के साइड, 6 + 2 8। अब प्रोडक्ट साइड काउंट करें तो 6 × 2 = 12 और ये 6 H2O का ऑक्सीजन, तो 18। प्रोडक्ट में 18 है, रिएक्टेंट में 8 है। तो रिएक्टेंट में कितने कम है? 18 - 8 10। तो अब क्या करें? 10 में से 6 तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही, तो 10 - 6 कितने हुए? 4। सॉरी, देखो यहाँ 18 है और यहाँ पर 8 है। तो अब आपको क्या करना है? 18 में से यहाँ ऑलरेडी 6 है, 6 को माइनस करो 18 में से, कितने हुए? 12। तो अब हमें सिर्फ यहाँ 12 लाना है, 2 ऑलरेडी है, तो 12 बनाने के लिए आगे क्या लिखेंगे? 6। तो अब बैलेंस हो जाएगा। देखो यहाँ के 6 ऑक्सीजन और एक 6 × 2 = 12, 12 + 6 18, हो गया बैलेंस। सो दिस इज अगेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होता है तो उसके सामने ऑलवेज हीट रिलीज होती है, but it's not a combination because more than 2 products are formed. So whenever question ask in this way कि explain combination reaction, then you can write any one chemical reaction out of first 3, 4th 5th आप नहीं लिख सकते। But whenever it is asked explain exothermic reaction, out of 5 any one reaction you can write. Clear? So this is combination and exothermic reaction. Okay. Second chemical reaction is decomposition reaction. The definition is a chemical reaction in which a single product is broken out on heating in presence of sunlight or by electric current is called decomposition reaction. देखो, डिकम्पोज करना मतलब तोड़ना। अब किसी को भी तोड़ना है तो हमें उसको तोड़ने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोई भी केमिकल कंपाउंड को या तो सनलाइट से तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से, या तो हीट से। तो जिस कंपाउंड को हीट से तोड़ते हैं दैट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब हीट और डिकम्पोजिशन का मतलब तोड़ना। अगर हम उसको सनलाइट से तोड़ते हैं देन इट इज़ कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन, क्योंकि सनलाइट में फोटॉन्स होते हैं।
अगर इलेक्ट्रिक करंट से तोड़ते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। तो इन शॉर्ट डिकम्पोजिशन का मतलब तोड़ना, फिर हमें साथ में ये लिखना है किससे तोड़ रहे हैं, हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिक करंट। सो अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज ब्रोकन आउट on heating in presence of sunlight, electric current or heat is called decomposition. And all decomposition reaction is endothermic reaction। देखो एंडो मतलब एंट्री, थर्मिक मतलब हीट। सबको ब्रेक करने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी। सो दे आर endothermic reaction also। Okay, so all thermal decomposition are endothermic reaction। Let us understand। First example is CaCO3 calcium carbonate। When calcium carbonate is broken out, it forms calcium oxide and carbon dioxide। To they break this calcium carbonate, we have to give heat। So it is called थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब हीट, और इसको हमने किससे तोड़ा, हीट से, तो थर्मल डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन बाय हीट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑल्सो। क्यों एंडोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब अ केमिकल रिएक्शन इन विच द हीट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो इट इज decomposition as well as endothermic reaction। Let us see this reaction through video। Here it is। Thermal decomposition of calcium carbonate। So here it is। Calcium carbonate, CaCO3। Look, in one test tube we'll take calcium carbonate। See, in this test tube we are having calcium carbonate। So whenever this calcium carbonate broken out, see when this calcium carbonate broken out, it form calcium oxide and carbon dioxide। अब ये इसके अंदर हमने पहले लिया था कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब हम उसको यहाँ हीट दे रहे हैं, तो हीट देने के बाद लास्ट में यहाँ पर जो अंदर बचेगा वो क्या बचेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसके अंदर से जो स्मोक निकलेगा दैट विल बी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ना हाउ विल यू कम टू नो कि वेदर द एमिटेड स्मोक इज कार्बन डाइऑक्साइड और नॉट, कैसे मालूम चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ऑक्सीजन है वो कोई भी चीज़ को जलाता है, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो जली हुई चीज़ को बुझाता है। तो हम क्या करेंगे, मैस्टिक जला के इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, अगर वो बुझ गई तो समझ जाने का कार्बन डाइऑक्साइड है। समझते हैं, चलो देखते हैं। अभी देखो ये मैस्टिक हम जलाएंगे। अब मैस्टिक जला के हम टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल रहे हैं, देखना ये तुरंत बुझ जाएगी। बुझ गई, तो ये क्या बताता है कि इसके अंदर कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज वेल एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्यों, क्योंकि यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हुई, हीट हमने दिया तभी डिकम्पोजिशन हुआ। सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन। Ferrous sulfate when decomposed it form ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide। याद रखना फेरस सल्फेट जब भी होता है तो उसके अंदर वैलेंसी 2+ होती है,
और सल्फेट की वैलेंसी 2-, और ये फॉर्म फेरिक ऑक्साइड होता है। ध्यान रखना, फेरिक मतलब Fe की वैलेंसी 3+ और ऑक्सीजन की 2-। अब क्रॉस करो तो ऑक्सीजन के पास 3 जाएगा और Fe के पास 2, तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 हुआ और फेरस FeSO4। ध्यान रखना, फेरस मतलब वैलेंसी आयरन की 2+ और फेरिक मतलब आयरन की 3+। लेट अस बैलेंस हियर हाउ मेनी आयरन 1, हियर 2, so here we will write 2 to balance. Now sulfur how many? 2. Here also sulfur in product side 1, 2. Now oxygen in the reactant side 4 2s are 8. In the product side 3 plus 2 6, 3 plus 2 6, sorry 3 plus 2 5 plus 3 8, so balanced. Now it is decomposition reaction. क्यों? Because a single substance broken out to form a product. सिंगल सब्सटेंस को हमने ब्रेक करके प्रोडक्ट फॉर्म की. इट इज एंडोथर्मिक ऑल्सो बिकॉज टू ब्रेक दिस what we have given heat. So here heat is absorbed. A chemical reaction in which the heat is absorbed is called endothermic reaction. So it is endothermic as well as decomposition. Let us understand this through YouTube video. So thermal decomposition of ferrous oxide. Ferrous oxide. Now let us understand this chemical reaction. So here in the test tube we'll take ferrous sulfate. This is ferrous sulfate. Now we have taken ferrous sulfate in the test tube. So now we are giving heat. Check it out, we are giving heat. That means it is endothermic क्योंकि ये heat absorb कर रहा है. तो हमें तब तक हीट देनी है जब तक ये फेरस सल्फेट येलो कलर का ना हो जाए. जैसे येलो कलर का होगा उसके अंदर से एक स्मोक निकलेगा. वो स्मोक होगा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का. देखो ये स्मोक रिलीज हो रहा है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर For long since sulfur dioxide and sulfur trioxide are toxic gases. The decomposition reaction. अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस ही निकला है? देखो कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्ट वो बर्न मैस्टिक को एक्सटिंग्यूश करता है, बुझा देता है. हाइड्रोजन का टेस्ट वो पॉपिंग साउंड के साथ जलता है. ऑक्सीजन वो भी चीज़ों को जलाता है. लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड ये जलाने से हम प्रूव नहीं कर सकते, इसी स्मेल से आइडिया आता है. तो स्मेल से हमें आइडिया आ जाएगा दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड. So this is combination reaction because so it is decomposition reaction because we have broken out ferrous sulfate. That means a chemical reaction in which the substance is broken down into the product is called decomposition. Endothermic also because heat is absorbed. Why it is called thermal decomposition? Because by giving heat we have decomposed it. Now next is decomposition of lead nitrate. Look, lead nitrate. So lead that is Pb which have valency 2+ and nitrate NO3 1-. So if I do cross I will get PbNO3 twice. When we give heat to the lead nitrate it decomposes to form a lead oxide, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. देखो लीड की वैलेंसी 2+, ऑक्सीजन 2-, ऑलरेडी बैलेंस्ड है. लेट अस बैलेंस द रिएक्शन. 1 लीड इन द रिएक्टेंट साइड, 1 लीड इन द प्रोडक्ट साइड.
nitrogen 2 in the reactant side, 1 nitrogen in the product side, so I will write 2 over here. Now oxygen 3 to the 6, reactant side, product side 1, 4 and 2 6, so it is balanced. ओके ऑलरेडी इट इज़ बैलेंस, लेकिन उन्होंने क्या, देखो टेक्स्ट बुक में उन्होंने पूरे केमिकल रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है. आप ये अगर लिखते हो तो भी करेक्ट है. टेक्स्ट बुक में उन्होंने पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है. यहाँ 2, यहाँ 2, ये 2 को मल्टीप्लाई किया 4 और यहाँ पर वापिस 2. ठीक, उन्होंने ऐसे रिएक्शन दिया हुआ टेक्स्ट बुक में. ठीक है, अब यहाँ पर this is decomposition reaction because single substance is broken down into the product. Endothermic also because heat is absorbed. Look here I have written SO3 but it's not S, it is 2O3, sorry O2. ठीक है, करेक्शन आपको करना है वहाँ पर. Let us see this through YouTube video. So decomposition of lead nitrate. Okay, add, let us wait. Now we can skip. See, in this test tube we'll take lead nitrate. This is lead nitrate. Now we'll start to give heat to the lead nitrate. See, we are giving heat to the lead nitrate. अब lead nitrate ऐसा है कि जैसे वो जलता है वैसे वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है. और हमें मालूम है लीड नाइट्रेट जब बर्न होता है तो बनता है लीड ऑक्साइड, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर रह जाएगा और बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड स्मेल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ऑक्सीजन का टेस्ट है. देखो ऑक्सीजन कैसे आइडेंटिफाई होगा, ये जो इंस्टेंट स्टिक है वो मैं जैसे टेस्ट ट्यूब में डालूंगा वो जलने लगेगी. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करता है, वो चीज़ों को जलाता है. देखना, आप ये साउंड भी सुन पाओगे रिएक्शन का. ये As you can see, the reddish brown fumes have started to come out. And now let me put the burning instant 6 inside. As you can see that the oxygen gas is making the flame more brighter. Oh, done, superb. चालू हुआ तो उसका So as you मतलब ये can क्या check the बताता है, presence of oxygen. यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ. ओके, so this is also decomposition reaction as well as endothermic reaction. Okay, now next reaction is decomposition of water. Simple, water when decomposed it form hydrogen and water, but by just giving heat, एक सिंपल लॉजिक है, वाटर को हीट देंगे तो गर्म होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, वो डिकम्पोज होगा नहीं. तो whenever any composition or compound is not decomposed by heat, we use electric current. So here water is decomposed by electric current, so it is called electrolysis. Here again it is decomposition because single compound or single reactant is broken down into the product. ठीक है, अब लेकिन यहाँ एंडोथर्मिक हम नहीं बोल सकते. एंडोथर्मिक सिर्फ फर्स्ट 3 को बोलेंगे. ठीक है, चलो अब ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. Here it is.
सी हियर वी हैव फिल्ड वाटर। जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस कर दे तो हमें एनोड और कैथोड की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने एनोड और कैथोड बना दिया है। अब इसको कनेक्ट करके हम बैटरी से उसको इलेक्ट्रिक करंट देंगे। जैसे इलेक्ट्रिक करंट देंगे, सिंपल लॉजिक, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ तो करना ही पड़ेगा, तभी वाटर डिकम्पोज होगा और उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, वाटर को डिकम्पोज करके यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकालेगा और यहाँ से ऑक्सीजन। तो उसका मतलब वाटर डिकम्पोज हुआ और वाटर किसका बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से ऑक्सीजन। देखते हैं, देखो ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, ये गैस का डिपोजिशन आपको दिख रहा होगा। ये हाइड्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है जो बाहर निकल रहा है। एक बबल्स निकल दिख रहे हैं आपको, ये बबल्स ऑक्सीजन के हैं। यहाँ जो बबल्स दिख रहे हैं बबल्स हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, अब चेक हम करेंगे कि ये जो गैस प्रोड्यूस हुआ वो सही में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। देखो हमने उसमें से जो गैस प्रोड्यूस हुआ था ये दोनों पॉलीथीन में भर दी, एक में हाइड्रोजन है एक में ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने चेक नहीं किया है, लेकिन हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसके अंदर उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस चेक की है। ये रही एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर वही हो रहा है। यहाँ पर हमने वापस वही किया हुआ है। देखो ये वाटर डिकम्पोज होके ये पहली टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन आएगा, दूसरे में ऑक्सीजन। देखो धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिल्ड हो रहा है। अब हम चेक करेंगे कि सही में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में जो गैस प्रोड्यूस किया वो हाइड्रोजन है कि नहीं। हमें मालूम है, कैसे मालूम चलेगा हाइड्रोजन गैस है कि नहीं, अगर हम बर्न मैस्टिक उसके पास रखेंगे तो पॉपिंग साउंड के साथ जलना चाहिए। ठीक है, तो आपको साउंड सुनना है, पॉपिंग साउंड आता है कि नहीं आता है। ओके, आवाज आई, उसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस है। अब दूसरी टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन कैसे मालूम चलेगा, तो वो कंबशन को इंक्रीज करता है, यानी जैसे अगर मैं मैस्टिक या इंस्टेक डालूंगा तो वो जलना चालू कर देगी। देखते हो hydrogen test. Okay, and the other one was not able to fill up all the way because the other one, when the test tube here is filled with hydrogen gas, the electrolyte is no longer in contact with the electrode. So we are now just passing 5 milliliters of gas, actually just past 6. So we're going to do a second test with that. Question test. So we're going to grab this. देखो Put it upside down. And अब ये देखो ज़्यादा see जलना that चालू हो easily गई, ignites back मतलब into वहाँ पर ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करता है, आग को और ज़्यादा जलाता है। इससे मालूम चल गया कि वहाँ पर कौन सा गैस प्रोड्यूस हुआ, ऑक्सीजन। सो दिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर विच फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन में एक मिस्टेक है, ये बैलेंसिंग में यहाँ पर सिर्फ आगे 2 लिखना है। ठीक है, आप लिख डालना, क्योंकि बैलेंस करेंगे तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, तो बैलेंस करने के लिए 2 लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन हो जाएंगे 4, तो यहाँ 4 बनाने के लिए आगे 2 लिखना पड़ेगा। सो इट इज़ ऑल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ सिल्वर क्लोराइड, सेम वे व्हेन सिल्वर क्लोराइड को डिकम्पोज करने के लिए सनलाइट की हेल्प लेनी पड़ेगी। वेनेवर कोई भी एक डिश में सिल्वर क्लोराइड लेके उसको अगर सनलाइट में एक्सपोज करते हैं, सो इट विल ब्रोकन डाउन एंड इट विल फॉर्म सोडियम, सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। सो इफ आई बैलेंस 2 chlorine, to make this 1 chlorine 2 I have to write 2,
silver are 2, so here 2. So it is decomposition reaction because single compound is broken out into silver and chlorine, and it is endothermic also क्योंकि sunlight की heat इसने absorb की तभी break हुआ. तो reaction in which heat is absorbed it is called endothermic reaction. Same way reaction of silver bromide. See, whenever this question is asked in the exam, okay, what is decomposition reaction, explain, so you have to write its definition and any two example you can write. कोई भी easy example लिख डालो. हाँ, एक काम करना है आपको, एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल लिखो, एक इलेक्ट्रोलाइसिस का और एक फोटो डिकम्पोजिशन. ठीक है. एंडोथर्मिक पूछते हैं तो इसमें से कोई भी रिएक्शन आप लिख सकते हो. क्लियर. सो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. Third reaction is displacement reaction. So there are two types of displacement reaction, mono displacement and double displacement reaction. So let us understand what exactly the mono displacement reaction or the displacement reaction is. A reaction in which more reactive element displaces less reactive element from its salt solution is called displacement reaction. So here we are talking about the more reactive metal and less reactive metal. So first of all you should know the activity series of metal. See, this activity series of metal we can remember easily by remembering one sentence, that is, listen carefully. Kana CM काना CM आज फेल हुआ क्यों हा देखो सिंपल थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी याद रखें कि जब वो CM है हमारे गुजरात का रूपाणी पर, सपोज वो एग्ज़ाम देने जाता है, सपोज CM अंधा है तो हम हमारी देसी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, कहानियाँ. तो कहानियाँ CM तो एग्ज़ाम देने जाएगा आज, तो क्या बोला जाएगा, काना CM आज एग्ज़ाम देने गया पर लेकिन वो फेल हो जाता है. तो अगर आपको किसी को मैसेज करना है तो आप क्या मैसेज करोगे कि काना CM आज फेल हुआ. ठीक है. सामने वाला पूछेगा क्यों, तो अपने हंसेंगे हा. इंग्लिश में हंसते हैं तो मालूम है एच पे ए लगाते हैं. तो बस इतना सेंटेंस याद रखो, काना CM आज फेल हुआ क्यों हा. देखो का मतलब होता है के पोटाशियम, ना का मतलब होता है Na सोडियम. ठीक है. सी का मतलब होता है Ca कैल्शियम, कार्बन नहीं होता, यहाँ ध्यान रखना है. पोटाशियम, ना का सोडियम, सी का कैल्शियम, एम मैग्नीशियम, और ये जो ए है दैट इज एल्यूमिनियम. सिल्वर मत करना. ज का मैंने जे लिखा है वो जिंक आएगा. हम यहाँ पर जे की जगह जेड यूज़ करेंगे. जेड यूज़ करेंगे. फेल में Fe, वो तो खुद ही सिंबल है आयरन का. ल यहाँ ल प्रोनाउंस होता है ना, तो ल से होता है लीड, ऐसे याद रखेंगे. थोड़ा डिफरेंट है. हुआ से हाइड्रोजन, क्यों कॉपर, हा. अब ये जो H है ये मर्क्यूरी शो करता है Hg, एंड दिस A shows Ag सिल्वर, एंड दिस A shows Au gold. Okay, let me write the valencies. Potassium 1 plus, that you have to remember. Sodium 1 plus, calcium 2 plus, magnesium 2 plus, aluminium 3 plus, zinc 2 plus, आयरन की दो वैलेंस है 2 प्लस और 3 प्लस दोनों, लीड 1 प्लस, हाइड्रोजन 1 प्लस, कॉपर 2 प्लस, मर्क्यूरी 1 प्लस, सिल्वर 1 प्लस और गोल्ड ऑल्सो 1 प्लस. Let us understand displacement reaction.
if iron metal or if iron nail is dipped in a copper sulfate solution. Okay, so copper sulfate, it is blue in color. तो check it out. Iron and copper, out of iron and copper which one is highly active? जो पहले आता है वो हाईली एक्टिव. देखो तो पहले हमारे यहाँ कौन आता है, देखो यहाँ पर आयरन आ रहा है, दिख रहा है, पहले आयरन है और कॉपर तो उसके बाद में है. तो आयरन मोर रिएक्टिव है, तो आयरन मोर रिएक्टिव हुआ और कॉपर लेस रिएक्टिव हुआ. तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, कॉपर की जगह आयरन आ जाएगा. तो क्या होगा, FeSO4 फेरस सल्फेट. ओके, और आयरन सल्फेट. अब जो कॉपर है वो फ्री हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि हाईली एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल. डिस्प्लेस करना मतलब उसकी जगह पे आना. आयरन आया कॉपर की जगह पे. हाईली एक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. ये कॉपर सल्फेट सॉल्ट सॉल्यूशन कहते हैं. तो अब हमें मालूम कैसे चलेगा, ये कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो टर्न होके ग्रीन हो जाएगा. ग्रीन हो गया, उसका मतलब क्या फॉर्म हो गया, फेरस सल्फेट. क्लियर? लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. टेक्सचुअल एग्जांपल only we going to take. Here it is. Zinc when react with silver nitrate. Check it out. Out of zinc and silver which come first? दोनों में से पहले कौन आता है? तो अगर हम देखें तो पहले जिंक आती है, यानी जिंक हाईली एक्टिव है और बाद में सिल्वर आता है. सिल्वर लो एक्टिव है. जिंक हाईली एक्टिव होने के बाद सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा, यानी उसकी जगह पे आ जाएगा. अब जिंक सिल्वर की जगह पे आ गया तो क्या बन गया, ZnNO3 जिंक नाइट्रेट, और सिल्वर फ्री हो जाएगा. तो मतलब हाईली एक्टिव एलिमेंट जिंक ने लेस एक्टिव एलिमेंट सिल्वर को डिस्प्लेस किया. सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सेम वे if I ask you one more reaction, like suppose copper plus zinc sulfate. चेक इट आउट. कॉपर और जिंक में पहले कौन आता है, कॉपर और जिंक में पहले जिंक आता है, यानी जिंक हाईली एक्टिव है और ये कॉपर जो है वो लेस एक्टिव मेटल है और जिंक हाईली एक्टिव मेटल है. ठीक है, तो उसका मतलब कि कॉपर जिंक की प्लेस पे नहीं आ सकता, क्योंकि कॉपर तो लो एक्टिव है, तो वो जिंक की प्लेस पे नहीं आ सकते. यानी ये रिएक्शन होगा नहीं, क्योंकि हाईली एक्टिव मेटल ही लेस एक्टिव मेटल यानी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है. तो कॉपर को अगर यहाँ डिस्प्लेस करना है किसी को तो कॉपर मोर एक्टिव होना चाहिए, लेकिन कॉपर जिंक से लेस एक्टिव है तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. सो दिस इज मोनो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मैनी रिएक्शन वी कैन राइट, ओनली यू हैव टू रिमेंबर दिस एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. If this series you know now, you will come to know which one is highly active and which one is less active, and accordingly you can write the equation. Clear? So whenever this question asked in the exam, कि write displacement reaction, you have to write definition and any one example you can write. For example, I have written over here. Now double displacement reaction. See, mono का मतलब क्या होता है, वन, और डिस्प्लेस करना मतलब जगह लेना. यहाँ पर एक ही आयन दूसरे आयन की जगह लेता है, यहाँ पर दो दो आयन जगह लेते हैं. डबल इसलिए दो, और डिस्प्लेस मतलब जगह लेना, उसकी जगह पे आना. सो लेट अस अंडरस्टैंड, यहाँ पर हाईली एक्टिव कुछ नहीं होता है, सिर्फ मोनो डिस्प्लेसमेंट में हाईली एक्टिव देखना पड़ता है आपको. ठीक है, तो हियर विल टेक एग्जांपल ऑफ सोडियम सल्फेट. Sodium sulfate, which is generally colorless, barium chloride. Okay, when I add sodium sulfate in barium chloride, so what will happen? See, valency of sodium is 1 plus,
सल्फेट 2 माइनस, बेरियम 1 प्लस, क्लोरीन 1 माइनस. ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन, सोडियम बेरियम की प्लेस पे आएगा. अब सोडियम बेरियम की प्लेस पे आया, बराबर है कि कौन आया, सोडियम बेरियम की प्लेस पे. तो अब सोडियम की प्लेस पे बेरियम आया, तो बेरियम कहाँ जाएगा, सोडियम की प्लेस पे. ठीक है, तो बेरियम सोडियम की प्लेस पे आएगा तो Ba, बेरियम की वैलेंसी 2 प्लस, बाई मिस्टेक मैंने 1 प्लस लिखी है. बेरियम 2 प्लस और सोडियम की प्लेस पे आया तो SO4 2 माइनस. तो ये बना बेरियम सल्फेट. चार्जेस ऑलरेडी बैलेंस है, क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और बेरियम को तो सोडियम की जगह पे भेज दिया. अब सोडियम बेरियम की जगह पे आएगा तो क्या बनेगा, Na1 प्लस और Cl1 माइनस. चार्जेस आर बैलेंस, नो नीड टू डू क्रॉस. ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे. जैसे सोडियम की जगह पे बेरियम आया है ना, सोडियम की जगह पे कौन आया, बेरियम. वैसे ही बेरियम के पास क्लोरीन था ना, तो क्लोरीन की जगह पे बेरियम के पास क्या आया, सल्फेट. समझे, तो पॉजिटिव आयन एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं और नेगेटिव आयन भी एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं. तो दो आयन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. लेट अस बैलेंस. हाउ मेनी सोडियम, 2. In product side only one sodium, so we'll write 2. How many sulfate, 1. In the product side also one sulfate. How many barium in the reactant, 1. Here 1. The chlorine in the reactant side 2, and the product side also 2, so balanced. Let us understand in definition. A reaction in which two components exchange their ions. The reaction in which two component or two compound, तो कौन कौन से दो कंपाउंड, एक ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड, ये दोनों ने अपने आयन को एक्सचेंज किया. यानी सोडियम बेरियम से एक्सचेंज हुआ और सल्फेट क्लोरीन से एक्सचेंज हुआ. दो आयन एक्सचेंज हुए, तो उसका मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट. सो रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दैट्स इट. Clear? One more double displacement reaction is potassium bromide and barium iodide. Potassium 1 plus, bromide 1 minus, barium 2 plus, iodine 1 minus. So potassium and barium will displace each other और bromide and iodine will displace each other. तो पोटाशियम को बेरियम के प्लेस पे लिखूँ तो पोटाशियम के साथ कौन आ जाएगा, आयोडीन, K1 प्लस, आयोडीन 1 माइनस. पोटाशियम बेरियम की जगह पे आया. बेरियम पोटाशियम की जगह पे आएगा तो बेरियम के साथ आएगा ब्रोमाइन. सो बेरियम 2 प्लस, ब्रोमाइन इज 1 माइनस. तो यानी पोटाशियम आयोडाइड चार्जेस आर बैलेंस, नो नीड टू डू क्रॉस. बट इन बेरियम ब्रोमाइड the charges are not balanced, so I will do cross. It will be BaBr2. Clear? So here potassium and barium displace each other, and bromide and iodine displace each other. So here two ions have exchange, so it is double displacement reaction. So let us understand through video. See, in mono displacement we'll discuss or we'll see video of only one reaction, that is iron with copper sulfate form ferrous sulfate, that means iron sulfate and copper. ठीक है, देखो. And place the iron nail into the solution. तो दिस इज कॉपर सल्फेट. ठीक है, कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का. अब उसके अंदर हम आयरन नेल डाल रहे हैं, तो अब देखना है हमें होता क्या है. For a few seconds, a reaction takes place. The nail soon becomes coated with a pinkish brown deposit.
So on the nail, When this is mentioned in common entrance, often leads candidates to think if we keep a nail for a longer time, let us see what happens. See, if we keep a nail for a long time, see on the nail, the black brown color copper is deposited and the solution become green in color. तो पहले हमने जो कॉपर सल्फेट डाला था, हमने क्या यूज किया था पहले? कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट हमने पहले लिया था जो कौन से कलर का था? ब्लू। अब इसके अंदर हमने जैसे आयरन नेल डाली, ठीक है, आयरन नेल डाली तो आयरन के ऊपर ये जो ब्लैक ब्राउन जो फॉर्म हुआ है वो क्या फॉर्म हुआ है? कॉपर। और सॉल्यूशन ब्लू में से ग्रीन क्यों हो गया? क्योंकि Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस किया और वो बना FeSO4 और फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर होता है। तो ये ग्रीन कलर ये बताता है कि रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पर आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। क्लियर? सो दिस इज अ वीडियो ऑफ मोनो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ विल सी वन वीडियो ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी किसका हम देखेंगे? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का। चलो देखते हैं। रिएक्शन reaction of sodium sulfate and barium chloride. Okay, here it is the video. In the double displacement reaction of barium chloride and sodium sulfate, we start out with a colorless solution of sodium sulfate. When we add See, in this barium stage chloride too, to it, we get the rapid formation of a white precipitate of barium. In this stage 2 we are having sodium sulfate. हमारे पास है सोडियम सल्फेट। अब उसके अंदर हम बेरियम क्लोराइड डालेंगे। तो आपको देखना है कि कैसे कलर चेंज होता है। ये हमारे पास है सोडियम सल्फेट, अब इसके अंदर हम डालेंगे बेरियम क्लोराइड। देखो बेरियम क्लोराइड डालते ही उसका कलर चेंज हो जाता है। Chloride and sodium sulfate. देखो अभी हम डाल रहे हैं बेरियम क्लोराइड। When we add barium chloride to it, we get the rapid Immediately formation its of color white precipitate. becomes white. So sodium sulfate and barium chloride. In sodium sulfate when we add barium chloride, so barium 2 plus, chlorine 1 minus, sodium 1 plus, sulfate 2 minus. So barium सोडियम को डिस्प्लेस करेगा क्लोरीन सल्फेट को, तो we'll have BaSO4 एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन में ये जो बना वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स वो किसके हैं? बेरियम सल्फेट के। और सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व हो जाता है, वो आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें मालूम है सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट, वो सॉल्यूबल है। तो ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट हुए, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। बेरियम को सोडियम ने डिस्प्लेस किया, क्लोरीन ने सल्फेट को डिस्प्लेस किया। ओके, सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज़ ऑल्सो सेड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ वाइट कलर के बेरियम सल्फेट के प्रिसिपिटेट फॉर्म होते हैं। ओके, सो दिस इज मोनो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। Oxidation reaction, a chemical reaction in which atoms or molecules gain oxygen, loses hydrogen is called oxidation reaction. We study reduction also. A chemical reaction in which atom or molecule gain hydrogen or loses oxygen is called reduction reaction. एक simple logic याद रखने का, oxidation that means gain oxygen, reduction that means gain hydrogen, इतना याद रखने का। ठीक है, ऑक्सीडेशन गेन ऑक्सीजन, रिडक्शन गेन हाइड्रोजन। अब उसका अपोजिट कर डालो, ऑक्सीडेशन लूज हाइड्रोजन,
रिडक्शन, लूज ऑक्सीजन. रिमेंबर ओनली वन थिंग, यही याद रखो. सो केमिकल रिएक्शन इन विच एटम और मॉलिक्यूल गेन ऑक्सीजन and lose hydrogen, it is called oxidation reaction. And chemical reaction in which atom or molecule gain hydrogen and lose oxygen is called reduction. Let us understand oxidation reaction. Simple. It is also called combination reaction. When copper react with oxygen, it form copper oxide. Copper is Cu2 plus, oxygen 2 minus. Charges are already balanced. Let us balance the equation. 2 oxygen, so I must have to write 2 before CuO. Copper become 2, so 2 before copper. So this is oxidation reaction. Why? Because copper gain oxygen. कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया, तभी तो कॉपर ऑक्साइड बना ना. कॉपर जनरली रेड कलर का होता है, रेडिश. जब कॉपर ऑक्साइड बनता है तो ब्लैक कलर का हो जाता है, हम वीडियो में देखेंगे. सेम वे मैग्नीशियम, when react with oxygen it form magnesium oxide. Magnesium 2 plus, oxygen 2 minus. Already charges are balanced. One magnesium, 2 oxygen. So to make this one oxygen 2, we'll write 2 before MgO, but magnesium become 2, so 2 before Mg. So here magnesium gain oxygen and it form magnesium oxide. Okay, so simple. Atom or molecule gain oxygen or lose hydrogen is called oxidation reaction. One more reaction given over there, that is reaction of carbon and oxygen. When carbon react with oxygen, it form carbon dioxide. Remember one thing, कि in this oxidation we must have to give heat. Heat देनी ही पड़ेगी. क्या देनी पड़ेगी? Heat. यहाँ एक्चुअली हीट के ऊपर गिव्स है जो प्रिंट नहीं हुआ है. क्लियर? So these are the oxidation reaction. Let us see video. Let us see reaction of copper with oxygen. Look, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑलवेज आपको हीट देनी पड़ेगी. हो डाउटनट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है. आइए देखते हैं कि ये डाउटनट. लेट दिस हैड टू बी कंप्लीटेड. ओके, see here we'll add copper. Copper is red in color. This is copper powder. Check it out. See, this is copper, red color powder, copper powder. Now simple. If you want to react any one or any substance with oxygen, you must have to give heat. क्योंकि कोई भी सब्सटेंस गर्म होता है तो तुरंत किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ. तो here we'll give heat to the red color copper. See, here we are giving heat. So slowly copper will start to react with oxygen. And finally, check it out. At the beginning copper was red in color. Now it's little bit become black brown. तो ये ब्लैक ब्राउन कैसे हो गया? क्योंकि अब यहाँ बन गया है कॉपर ऑक्साइड, यानी कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना दिया कॉपर ऑक्साइड. सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नाउ लेट अस सी वन मोर ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम. रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन. हमें मालूम है कि मैग्नीशियम की क्या होती है? रिबन. देखो, अब ये मैग्नीशियम रिबन है. सिंपल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है तो क्या करना पड़ेगा? हीट देनी पड़ेगी. तो अभी मैग्नीशियम रिबन को हम हीट देंगे और हमें मालूम है मैग्नीशियम रिबन जब भी जलती है तो डेजलिंग फ्लेम के साथ जलती है. चेक इट आउट. So this is dazzling flame. That means it has been reacted with oxygen. वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो चुकी है. अब देखना, ये इसका कलर, ये कौन से कलर की हो गई? वाइट कलर की. देखो, ये मैग्नीशियम रिबन कौन से कलर की हो गई? वाइट कलर की. यहाँ पर भी है.
तो मतलब ये वाइट कलर की होगी, मतलब उसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसलिए वाइट कलर की होगी. सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नाउ let us study reduction. It is opposite to oxidation. Chemical reaction in which atom or molecules gain hydrogen or loses oxygen is called reduction reaction. देखो कॉपर ऑक्साइड, अब सिंपल ये गेन क्या करेगा, हाइड्रोजन. ठीक है. अब देखो नाउ हियर ऑक्सीजन will react with hydrogen and will form water and copper will be free. देखो रिडक्शन का मतलब क्या, या तो हाइड्रोजन गेन होना चाहिए या तो ऑक्सीजन लूज होना चाहिए. देखो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर बना, तो कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्सीजन गेन किया कि लूज किया, बताओ चलो मुझे. कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर बना, यानी यहाँ ऑक्सीजन है यहाँ नहीं है, मतलब उसने ऑक्सीजन को लूज किया. लूज ऑक्सीजन मतलब ऑब्वियस रिडक्शन. अब हाइड्रोजन को देखो, या हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन था ही नहीं है, ऑक्सीजन आ गया, मतलब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया, तो ये ऑक्सीडेशन भी हो गया इसके साथ में. तो ये रिएक्शन में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ और कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन. ये रिएक्शन आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में लिख सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पर तो हमें रिडक्शन लिखना है, तो हम यही समझाएंगे कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन, उसने ऑक्सीजन लूज किया. लेकिन यहाँ पर भी हमें हीट देनी पड़ती है, या हीट लिखना भूल गए तो हाफ मार्क कट हो जाएगा. सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन हीटेड विथ हाइड्रोजन इट फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर. एक बात याद रखना, रिडक्शन से वाटर तो फॉर्म होगा ही, किसी को भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करो तो वाटर तो फॉर्म होने वाला है. तो यहाँ 2 ऑक्सीजन थे, वहाँ से एक ऑक्सीजन किसके पास चला गया, हाइड्रोजन के पास, H2O हो गया. तो कॉपर ऑक्साइड में से देखो कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन थे, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बना जिसके अंदर एक ही ऑक्सीजन हुआ. तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ने एक ऑक्सीजन लूज किया, ऑक्सीजन लूज किया मतलब ये हुआ रिडक्शन. और वैसे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया था, इसका ऑक्सीडेशन, लेकिन हमें तो इसका देखना है. सो इट इज रिडक्शन रिएक्शन. सेम वे मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, ऑब्वियसली पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा, तो कौन बच जाएगा, मैग्नीशियम. मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम बना, यहाँ से ऑक्सीजन था या लूज किया, मतलब ये रिडक्शन हुआ. और अगर हाइड्रोजन का देखें तो उसका ऑक्सीडेशन. ओके. सो लेट अस सी दिस रिडक्शन रिएक्शन थ्रू वन एग्जांपल. कॉपर ऑक्साइड, हमें मालूम है कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, क्योंकि अभी यहाँ पर हमने समझा रेड कलर का कॉपर, उसको हम हीट देते हैं तो उसे कॉपर ऑक्साइड बन जाता है जो ब्लैक कलर का होता है. अब कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का, हम उसको गर्म करके रेड कलर का कॉपर लाएंगे. ठीक है. लेट अस सी थ्रू वीडियो. Here, reduction of copper oxide. See, this is copper oxide, black in color. Now we'll give heat to this copper oxide and let us see what happens. With the help of Bunsen burner, we'll give heat. और हाँ, हमें हाइड्रोजन भी अंदर ऐड करना है ना, क्योंकि ये रिडक्शन करना है तो हाइड्रोजन तो ऐड करना ही पड़ेगा. तो ये जो आपको ट्यूब दिख रही है, ये जो ट्यूब दिख रही है, उस ट्यूब के थ्रू हम इसके अंदर टेस्ट ट्यूब में क्या ऐड करवा रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड करवा रहे हैं. तो हम हाइड्रोजन ऐड करवाते जाएंगे और उसको हीट देते जाएंगे. ठीक है. देखो यहाँ पर हीट दे रहा है नीचे से,
तो जैसे हम हीट दे रहे हैं, यहाँ पर देखो पहले तो ये क्या स्टार्ट हो गया, यहाँ पर देखो ये दिख रहे वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं आपको, ये वाटर ड्रॉपलेट क्या शो करता है, वाटर फॉर्म हो रहा है यहाँ पर देखो। और यहाँ देखो थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश कलर रेड में कन्वर्ट होता जा रहा है, मतलब ये जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड है उसके अंदर से हमने हाइड्रोजन पास किया था, ठीक, हाइड्रोजन पास किया तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसने वाटर बना दिया, और कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का था उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया और बना रेड कलर का कॉपर। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स में हमें दिखते हैं, और देखो रेड कलर का कॉपर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दिस इज रिडक्शन रिएक्शन, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन, ओके। Precipitation reaction, a chemical reaction in which reactants react to form insoluble precipitate is called precipitate or precipitation reaction। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के रिएक्ट होने के बाद इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट फॉर्म होते हैं, उसको कहते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। लेट अस अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन थ्रू वीडियो। See, in this test tube we have taken copper sulfate, सोडियम सल्फेट, ठीक है। अब सोडियम सल्फेट के अंदर हम बेरियम क्लोराइड ऐड करेंगे, देखना तुरंत ही यहाँ पर वाइट कलर के प्रिसिपिटेट फॉर्म हो जाएंगे। अब ऐड कर रहे हैं हम, ये सोडियम सल्फेट, अब बेरियम क्लोराइड ऐड करेंगे। देखो जैसे बेरियम क्लोराइड हमने ऐड किया तुरंत ही ये वाइट कलर का जो फॉर्म हुआ, दिस आर द प्रिसिपिटेट्स, दिस आर द प्रिसिपिटेट्स। वी वेर हैविंग sodium sulfate Na2SO4 in which we have added barium chloride BaCl2। तो क्या हुआ, ये सोडियम पॉजिटिव 1 प्लस सल्फेट 2 माइनस बेरियम 2 माइनस बेरियम 2 प्लस क्लोरीन 1 माइनस। सो sodium displace barium, sodium react with chlorine, so it will form sodium chloride, and this barium react with sulfate, it form barium BaSO4। तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट है सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, और क्या बना, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। तो ये जो वाइट कलर के जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर वो प्रिसिपिटेट है इनसॉल्युबल, इसके अंदर वाइट कलर के पार्टिकल्स हैं जो हमें यहाँ क्लियर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जैसे अगर हम ये सॉल्यूशन निकाल देते हैं तो आपको दिखेंगे। सो दिस इज अ बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, दिस आर कॉल्ड प्रिसिपिटेट। कोई भी सॉल्यूशन के अंदर वो पार्टिकल जो सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होता उसको प्रिसिपिटेट बोला जाता है। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ वाइट कलर का जो इनसॉल्युबल है, सो दैट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट। सो हियर वी हैव ऑब्टेन द प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। सिंपल है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच reactant form insoluble precipitate, then such reaction is called precipitation reaction। अब आप सोचो कि वाइट कलर का बेरियम सल्फेट बना तो सोडियम क्लोराइड कहाँ गया, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूबल है, वो सॉल्यूबल हो गया इसी के अंदर, इसे दिखता नहीं है। तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूबल है तो उसको हम प्रिसिपिटेट नहीं बोल सकते, जो इनसॉल्यूबल है उसी को हम प्रिसिपिटेट बोल सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। Let us balance sodium 2, sodium 1, so I will write 2 before sodium, sulfate 1, barium 1, chlorine 2, balance। This is double displacement reaction also, है ना, that we have studied। So it is precipitation reaction। So here the chemical reactions are over।